کورونا وائرس کے حملے بدستور جاری، لاہور میں 39 روز کے دوران 27 افراد جاں بحق۔ کورونا سے متاثرہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 27 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا کے 4331 تصدیق شدہ مریض ہیں۔ پنجاب میں کورونا سے 51 افراد جاں بحق، 724 صحتیاب ہو چکے۔ پی کے ایل آئی سے مزید 5 افراد صحتیاب ہونے پر ڈسچارج ہوئے۔ شہر میں لاک ڈاؤن کے لیے لگائے گئے ناکوں کی تعداد میں مزید کمی، شہر میں 173 ناکے ختم کر دیے گئے، مجموعی طور پر 56 ناکے موجود۔ ناکوں میں کمی ماہ رمضان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے کی گئی، جبکہ شہر میں جزوی لاک ڈاؤن کے باعث قانون شکن عناصر کے خلاف 2064 ایف آئی آرز درج کی جا چکی ہیں۔ 1,85,000 سے زائد شہریوں کو روک کر نقل و حرکت کی وجہ پوچھی گئی۔ 1,74,000 سے زائد شہریوں کو وارننگ دے کر واپس گھروں کو بھیجا گیا۔ شاہ عالم مارکیٹ اور گرین ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں لاک ڈاؤن بے سود، بازاروں میں گہما گہمی بیشتر دکانیں کھل گئیں۔ خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف رہی، سماجی فاصلے کا خیال بھی نہیں رکھا گیا۔ شاہ عالم مارکیٹ میں سینکڑوں تاجران دکانوں کے باہر موجود، آنے والے گاہکوں کو شٹر اٹھا کر سامان دے دیا جاتا ہے۔ رمضان میں سحری کے وقت دودھ دہی کھانے پینے کی دکانیں کھلی رکھنے کا فیصلہ، سحری اور افطاری میں ہوٹل اور ریسٹورانٹس بند رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کورونا کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے، کورونا کی تشخیص کے لیے 4 مزید لیبز بنانے کی بھی منظوری۔ نماز تراویح کی ادائیگی 20 نکاتی اعلامیے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے احکامات جاری۔ کورونا وائرس کی وبا سے پنجاب کے موجودہ بجٹ کو بڑا دھچکا، پنجاب میں انتظامی اخراجات میں حکومت کو مالی خسارے کا سامنا۔ پنجاب حکومت نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ نان ڈیولپمنٹ کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ پی این ڈی بورڈ نے حکومتی احکامات پر 6 ارب کے فنڈز نان ڈیولپمنٹ کے لیے منتقل کر دیے۔ حکومت کا آئندہ سال میں تمام صوبائی محکموں کے بجٹ سے 10% کا کٹ لگانے کی تجویز۔ سرکاری محکموں کا 10% فنڈ کورونا وائرس کے انتظامات پر خرچ ہوگا۔ پی این ڈی بورڈ کی جانب سے تجاویز وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث روکی گئی ترقیاتی اسکیمز کو شروع کرنے کا فیصلہ، کمشنر لاہور نے 65 کروڑ کی 190 ترقیاتی اسکیمز کو مکمل کرنے کی اجازت دے دی۔ چیف کارپوریشن آفیسر ایم سی ایل نے اسکیمز کے ٹینڈرز اخبارات کے لیے ارسال کر دیے۔ موجودہ سرکار کی ترقیاتی کاموں پر سست رفتاری، 2.5 سال سے مشکلات میں ڈوبا 11 اسپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ تباہی کے دہانے پر۔ ایل ڈی اے کا ای ڈی پی میں منظور شدہ فنڈز دوسرے منصوبوں کو منتقل کرنے کا فیصلہ، چیف انجینئر نے فنڈز منتقلی کرنے کا نوٹیفیکیشن ڈی جی ایل ڈی کو ارسال کر دیا۔ پاکستان فلور ملز کا محکمہ خوراک کی پالیسیز کے خلاف سوموار سے ہڑتال کا اعلان۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کا ہنگامی اجلاس میں فیصلہ، رمضان المبارک قریب ہے، حکومت نے گندم کی فراہمی بند کر دی، حکومتی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہم نہیں بھگتیں گے، ایسوسی ایشن کا عزم۔ کورونا وائرس کی آڑ میں ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف اہم اقدام، پنجاب انسداد ذخیرہ اندوزی آرڈیننس 2020 جاری، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو 3 سال کی قید ہوگی۔ چھاپے کے دوران قبضے میں لیا گیا مال سرکار کی ملکیت تصور ہوگا، ذخیرہ اندوز کے بارے میں اطلاع دینے والے کو بھی انعام دیا جائے گا۔ لاہور پولیس نے ماہ رمضان کے حوالے سے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا، انفورسمنٹ کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں۔ کمیٹیوں میں ضلع انتظامیہ، امن کمیٹیاں اور مساجد کے امام شامل ہوں گے۔ کمیٹیاں رمضان میں حکومتی ایجنڈے پر عمل درآمد کروائیں گی۔ ادھر مساجد کے باہر حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز کو آویزہ کرنے کا فیصلہ، شہر کے 9 زونز میں 4500 سے زائد مساجد ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے احساس کفالت سینٹرز پر رقم ادائیگی کی تفصیلات جاری کر دیں۔ گزشتہ روز 31 سینٹر سے 9028 افراد کو 12000 فیصد ادائیگی کی گئی۔ آج 12ویں روز بھی رقم کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ احساس کفالت سینٹرز پر بزرگ شہریوں کے فنگر پرنٹس کی تصدیق کا مسئلہ جو کا تو رہا۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ میں صبح سے لائن میں لگے بزرگ خوار ہو گئے۔
तमाम एहसास किफालत मराकज पर फिंगरप्रिंट्स का मसला, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। पंजाब हुकूमत का बेरोजगार मजदूर दिहाड़ीदार की माली मुआवनत का फैसला। बेरोजगार मजदूरों दिहाड़ीदारों का डेटा इकट्ठा करने का काम तेजी से जारी। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से वाबस्ता मजदूर दिहाड़ीदार लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की भूख हड़ताल का 7वां रोज। अमीर जमात इस्लामी का भूख हड़ताली कैंप का दौरा। सिराजुल हक ने भूख हड़ताल पर रहने वाले डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स भी तकसीम की। एक सीट पर कई सालों से तैनात क्लरिकल स्टाफ के लिए बड़ा हुक्मनामा जारी। कोई भी अफसर 10 साल से ज्यादा एक ही रीजन या यूनिट में तैनात नहीं रहेगा। आईजी पंजाब का मुतल्लिका अफसरान तब्दील करने का हुक्म। तब्दील होने वाला एहलकार या अफसर 3 साल तक दोबारा इस सीट पर तैनात नहीं होगा। शहरी खुद को और दूसरों को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। बात करने के दौरान कम से कम 3 फुट का फासला रखें। सदर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक मियां की प्रोग्राम सिचुएशन रूम में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान के लिए आजमाइश का वक्त शुरू होने वाला है। आमतौर पर मौसम की तब्दीली से भी तबीयत मुतासिर होती है। नैब को शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया जवाबनामा मौसूल। नैब टीम का भेजे गए नामुकम्मल जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। नैब टीम ने बाहमी मुशावरत के बाद 4 मई दिन 12 बजे दोबारा तलबी का परवाना अरसाल कर दिया। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि कोरोना खदशे के बायस शहबाज शरीफ पेश नहीं हो सके। मतलूबा मालूमात बमा दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं। नैब को मजीद मालूमात चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर सकता है। नैब लाहौर ने राजा परवेज अशरफ की बरियत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब की जानिब से अपील में राजा परवेज अशरफ को फरीक बनाया गया। नैब की जानिब से पेश किए गए रिकॉर्ड का बगौर जायजा नहीं लिया गया। नैब की अपील में मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने लाहौर पार्किंग कंपनी केस का फैसला सुना दिया। अली की रहनुमा हाफिज नुमान समेत दीगर मुल्ज़िमान बरी। जज अमजद नज़ीर चौधरी ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। नाजायज़ असासे बनाने के शवाहिद की अदम दस्तयाबी पर पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ जुर्म नहीं बनता। हाफिज नुमान बोले, मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगा। आहत अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। सीड एसोसिएशन के वफ़द की सीनियर वज़ीर ख़ुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। सदर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अंजुम निसार भी मौजूद थे। अब्दुल अलीम खान बोले, गन्नम खरीदारी में पंजाब हुकूमत के हदफ की तकमील तरजीह है। यकम जून से स्कूल्स लाजमी खुलेंगे। स्कूल्स की टाइमिंग कम रखी जाएगी। 4 हफ्तों के अंदर बच्चों को नए सेशन की किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज की गुफ्तगू। बोले, तलबा का मज़ीद तालीमी नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर सनत असलम इकबाल की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स ड्राइव फराहमी इमदाद का इजलास। लॉकडाउन से मुतासिरा मजदूरों दिहाड़ीदार तबके का डेटा इकट्ठा करने पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मियां असलम इकबाल बोले, बेरोजगार मजदूरों और दिहाड़ीदारों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। आजमाइश की इस घड़ी में हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान की सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख से मुलाकात। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज भी मुलाकात में मौजूद थे। कोरोना के बायस लॉकडाउन से पैदा होने वाली मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लॉकडाउन के हवाले से ताजिरों को दरपेश मसाइल पर मदीना बाजार के ताजिरों का इजलास। छोटा ताजिर पिस रहा है, हुकूमत 4 से 5 घंटे कारोबार करने की इजाजत दे, रहनुमाओं का मुतालिबा। रेलवे हेडक्वार्टर के रमजानुल मुबारक के लिए रिजर्वेशन दफातर के नए औकात कार जारी। दफातर 2 शिफ्टों में काम करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक होगी। औकात कार 20 रमजानुल मुबारक तक लागू होंगे। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स खोलने का फैसला। शहर भर के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स को मखसूस स्टाफ के साथ खोला जाएगा। ओपनिंग से कबल तमाम सेंटर्स में
फ्लोरीन स्प्रे को यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए लीगी रहनुमाओं की जानिब से मिलने वाले हिफाजती सामान की तकसीम। कामरान माइकल, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैयद तौसीफ शाह और दीगर लीगी रहनुमाओं ने सामान तकसीम किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, पहले डॉक्टर्स और नर्सेज में हिफाजती सामान तकसीम किया, अब दर्जे चाहरम के मुलाजमीन को फराहम कर रहे हैं। कोरोना वायरस हुकूमती गफलत से फैला, हुकूमत तमाम अस्पतालों में सहूलियात फराहम करे। नमाज पंजगाना तरावी के मुतालिक हुकूमत उलमा के एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। ऐवान सदर से जारी एलामिया मुल्क के जय्यद उलमा मशाइख का इजमा है। तहरीके इंसाफ उलमा मशाइख विंग पंजाब के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत के नमाज से मुतालिक फैसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत जल्द कोरोना की वबा से निजात हासिल कर लेंगे। कमिश्नर सैफ अंजुम की जेर सदारत अहम इजलास। रमजानुल मुबारक में मसाजिद में कोरोना इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। मसाजिद और कमर्शियल जगहों की सख्त मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील होंगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी, इजलास में फैसला। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर बट से डिस्ट्रिक्ट स्टाफ जुडिशरी कमेटी की मुलाकात। कमेटी ने सेशन जज का अदालती मुलाजमीन को हिफाजती किट फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सेशन जज लाहौर ने तमाम अदालती स्टाफ को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की। IG पंजाब की जेर सदारत CPO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। एडिशनल IGs, DIGs और AIGs समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अफसरान और एहलकारों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और डेपुटेशन तबादला ख्याल। पुलिस अफसर की डेपुटेशन का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 5 बरस मुकर्रर करने का फैसला। DIG के ओहदे पर तरक्की पाने वाले हसन रजा खान को बैज लगाने की तकरीब। IG शुएब दस्तगीर ने हसन रजा खान को DIG के ओहदे से बैजेस लगाए। DIG हसन रजा खान को तरक्की के बाद CPO मुल्तान तैनात किया गया है। डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर की अपग्रेडेशन का काम शुरू। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद ने डिफेंस टेस्टिंग सेंटर का दौरा किया। DSP लाइसेंसिंग ने CTO को रेनोवेशन और अपग्रेडेशन वर्क पर ब्रीफिंग की। KSC के कंट्री हेड गोहरेज हबीब खान का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। सिटी 42 के डायरेक्टर न्यूज़ खुरम कलीम, 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी ने इस्तकबाल किया। गोहरेज हबीब ने स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। KSC की जानिब से स्टाफ ने लंच बॉक्सेस भी तकसीम किए गए। कोरोना के खिलाफ सिटी न्यूज़ नेटवर्क में SOPs काबिल तहसीन है। गोहरेज हबीब की गुफ्तगू। डॉलर की कदर में कमी होने लगी। इंटरबैंक डॉलर मजीद 76 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। और कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक ने T20 वर्ल्ड कप क्राउड के साथ कराने का मुतालबा कर दिया। ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक की वीडियो कॉन्फ्रेंस बोले, मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ियों के मुआवजों बारे फैसला PCB का है। हमें मालूम है कि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा।